So we are going to find conditions for no emergence of light from the other end of the prism. That means what? Light will enter a prism, refract through it, but will not come out through the other surface, that is AC. How can that happen? Suppose if I ask you, if a movie show allows a person from 5 p.m. to 6 p.m. movie show. So when a person is not allowed to enter the movie show, that is the question. So answer would be 6 p.m. and 15 minutes, 6 p.m. and 30 minutes, 7 p.m., 8 p.m., next day, 1 year later, any answer. So we need to learn the limit up to what time a person is allowed to enter the movie show. Up to that, all the people are allowed, with tickets, but after that time, no person will be allowed into the movie show. Similarly, we want to find what is the last ray that has refracted from the other surface. Then that would be the limiting ray. Then other rays not abiding by those features will not be allowed. So let us find which ray last to refract through the other surface. This is the last ray which has refracted through the other surface. Why? Because the ray, this one refracted. ऐसे bend करके नहीं जाएगा. Refracted. So this has been the last ray that has been refracted. Otherwise, इससे अगर अंदर आ गए, इससे भी, so the ray will move inside. Total internal reflection. Very good. So this would be the last ray which would be refracting through the other surface. Let us find conditions for which this ray is allowed to the other medium. Then if that condition is not followed, no ray will be coming out through the other surface. That is the theory, no emergence. We are ready with it. चलो start करते हैं. Give the names. I1, the first angle of incidence. R1, first angle of refraction. Here R2, second surface में angle of incidence R2, and angle of refraction here I2 finally is 90 degree. I2 90 degree. So this reminds us of critical angle. Very good. So must be R2 is I means angle and C means critical. So R2 must be critical angle for which this ray refracts being perpendicular to the surface. Being perpendicular to the normal and grazing the surface. This is the last ray that is coming out. Okay, let us find this condition for which it is coming out. चलो calculation start करते हैं. First idea. बड़ा एक सेकंड ना. फोन टा देखी कोথায় আছে. ফোনটাকে ইয়ে করে দাও, সুইচ অফ. চলো, so we are ready. চলো, so you have drawn this. Now we will be applying Snell's law here, and that will give us, if this is air that the ray has started. Mu is 1. Air is, mu is 1. Then sine I1. This is I1. I1 is equals to mu into sine R1. Mu into sine on the other side R1. Right. So from this, what is the value of sine I1? That is mu into sine R1. Yes. So sine I1 is equal to mu times sine
Can we write it this thing? See this. What is the logic? What is the logic? Logic behind this? Sir, A is equals to R1 plus R2. Very good. As A equals to R1 plus R2, so R1 can be replaced by A minus R2. देखो ना, सिंपल करके सोचो. This angle is equal to this angle plus this angle. So this angle can be replaced by A minus this angle. Okay. So that we have. And now we are going to apply. We are going to apply sine A minus B here. Let us do that on the next page. I am doing on the next page. You follow it. So sine I1 was mu times then sine A minus R2, that means sine A cos R2 minus cos A sine R2. That is it is. But as we understood that R2 here is nothing but critical angle. মাঝে মাঝে না স্ক্রিনটা খুব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। ও আচ্ছা, ওটা সেলফ অ্যাডজাস্টিং আছে তো, মানে ওই জন্যে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটা সেলফ অ্যাডজাস্টিং ফোকাস তো ওই জন্য একটু মাঝে মাঝে হচ্ছে, একটু অ্যাডজাস্ট করো না। হ্যাঁ ওকে স্যার, ওকে ঠিক আছে, চলো। So we know R2 equals to critical angle. Actually see this R2 is nothing but critical angle IC, that's why it is 90 degree. So IC, I have told you that whenever you hear of IC, then we know this thing. Why? Because whenever we think of critical angle, it is given by 1 by mu of the denser medium with respect to rarer medium. That is 1 by mu. Sin IC 1 by mu. So IC is sin inverse 1 by mu. IC. That means R2 is sin inverse 1 by mu. So keeping these in mind, let us move with this in easy way, mu into sine of the angle of the prism. Now once a prism has been purchased, drawn, this angle is fixed, we cannot change it, so this has a fixed value, sine A. We कहने का मतलब है we need not to think anything with the sine or cos having angle A. Why? Because angle A is a fixed angle that stays with the formula. What we need to change is R2, and sine R2 means sine IC is 1 by mu. So sine R2, sine IC money R2, 1 by mu, which gives us cos R2 would be how much? Root over 1 minus sine square R2. Cos theta, root over 1 minus sine square theta. So it gives us root over 1 minus. Now sine R2, that is sine IC, is 1 by mu. So it would be 1 by mu square, which finally becomes equal to root under mu square minus 1 divided by mu square. LCM करने से, but mu square coming out of the root over will be a single mu. This is our background calculation. You need to, yes, you need to show it at least this much. जितना मैं ऐसा क्लाउड बना दिया ना, इतना एटलीस्ट ये ब्रैकेट में लॉजिक पार्ट में दिखना चाहिए कि एज बोल के ये पार्ट को लिख देना, क्लाउड वाला पार्ट को एज बोल के। ये क्लाउड, मेक श्योर यू हैव रिटन दिस, बिकॉज इसमें अगर 3 मार्क्स आता है, 1 मार्क विल डेफिनेटली गो टू दिस लॉजिक पार्ट. How you found these values to be replaced by cos R2 and sin R2. ठीक है, sin R2 1 by mu, so cos R2 root over 1 minus sin square theta, that means R2, so it is 1 minus this. Let us put the values and get the answer. हो गया बस. कैसे? cos R2 कितना आ गया? root over mu square minus 1 by mu, बैठा दिया cos R2 का वैल्यू ये, और माइनस cos A sin R2. sin R2 is simply 1 by mu. sin R2 का वैल्यू बैठा दिए, ये हो गया. now calculate करो and put the values. bracket open,
So it finally becomes equal to, got the answer, sine A into root over mu square minus 1 minus cos A. That is the answer. Because mu और EA mu cancel हो जाएगी if you open the bracket. So would be this mu. So this is the answer. What equals to this? This thing equals to this. So we get what? Sine I is given by sine A root over mu square minus 1 minus cos A. You can apply this for your competitive exams directly, or you can have this as a theory for your board exam. So if sine I, मैं फिर से इसको लिख रहा हूं, sine I1, which reminds us that it is the angle on the first surface, is given by, देखो sin A और cos A रह गया, ऐसे करके याद रखो इसको, सिर्फ बीच में क्या हो गया, sin A इंटू रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये पार्ट एक्स्ट्रा गया. सो दिस शुड बी sin I1, so that this value comes as this. So how can we write I1 from here? इससे I1 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, I1 only. We can write I1 as sine inverse, yes, sine inverse of this thing, that is sine A into, ये वैल्यू याद रखना, रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1 ना, याद रखना, माइनस cos A. लेकिन ना इसका अगला पार्ट और इंटरेस्टिंग है. क्या? दिस वॉज द लास्ट रे, दिस वॉज द कंडीशन फॉर लास्ट रे that was allowed actually. This didn't come back. देखो पिक्चर, this was the last ray that was allowed to come to the other side. So condition is for what condition or conditions, क्योंकि और एक कंडीशन आएगा बाद में बताएंगे. तो no emergence takes place means this ray is not allowed. तो ऐसा होने से तो allowed हो रहा है finally for the last time, ऐसा होने से. So this is the condition for the last ray to come out of the prism. So for what condition ray will not come out of the prism? अगर देखो प्रिज्म में ना मेन वेरिएबल कौन होता है जानते हो? प्रिज्म का मेन वेरिएबल इज the angle of incidence on the first surface, I1. That is the main variable. So if I1 is इतना, sin inverse इतना, तो रे आएगा लास्ट. तो sin I1 कितना होने से रे आएगा, नहीं दूसरा सरफेस से. So I1 must be greater than this value. नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, माने नहीं होगा. I1 has to be less than this value. तो I1 must be less than this value. किस लिए? So that no ray comes out of the prism. For no emergence of the ray, इससे कम एंगल में लाइट को गिरना चाहिए. एक बार देख लेता हूं क्यों. एक बार फिर से ड्रॉ करो मेरे साथ, फिर से ड्रॉ करो मेरे साथ ABC, फिर से ड्रॉ करो मेरे साथ. नाउ दिस वाज द इंसिडेंट रे at an angle I1. Okay, this was the refracted ray making an angle R1, and this was it. Okay, now if this angle with the normal is R2, which was equal to critical angle, then the ray passes grazing the surface. But ये लास्ट पिक्चर था हम लोगों का, ये निकल रहा है कौन? PQRS. So RS is allowed. RS is allowed. Finally, तो कौन सा रे है जो अलाउड नहीं है? रे ये होगा अगर अलाउड नहीं है. थोड़ा सा अगर R2 अगर थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो क्या होगा बोलो? टोटल इंटरनल डिफरेंस. गुड. इफ R2 थोड़ा सा ज्यादा देन क्रिटिकल एंगल, ये तो अभी क्रिटिकल एंगल का वैल्यू लेके बैठा है. इफ इट इज स्लाइटली मोर देन क्रिटिकल एंगल, देयर वुड बी TIR happening from here.
So this ray suffers TIR. That means total घूम के आ जाएगा वापस. So there will be no emergence. चलो ये ठीक है, ये चाहिए हम लोगों को, ये चाहिए. So if you want this, what do you require? R2 slightly more. अब इसको देखो. R1 12. Yes. R1 12. Yes, मैं बोला था कि when you purchase a prism from a shop, the value of A, refracting angle of the prism, that is constant. So if this is constant, and if you want to slightly increase this angle R2, then R1 has to be decreased. तो R1 को कम होना पड़ेगा. तो स्लाइटली मोर अगर होना है तो R1 को क्या होना है? स्लाइटली लेस देन दिस वैल्यू. तो अगर R1 को कम होना है, सो हैज टू I1. क्यों? साइन ऑफ द एंगल I1 एंड R1 बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो. याद है स्नेल्स लॉ? दैट गिव्स अस द आइडिया. दैट गिव्स अस द आइडिया. साइन आई साइन आर का रेशियो फिक्स होता है. सो इफ वन एंगल डिक्रीजेस, द अदर मस्ट डिक्रीज. सो इफ यू वांट अ लेस एंगल ऑफ R1, you need to incident the light at a lesser angle. So if now you understand this simple chota sa line, for no emergence, value of the angle of incidence on the first surface must be less than, माने यहां पे मैं I1 का बात बोल रहा हूं, ये I1 नहीं, ये दिस वैल्यू माने ये वैल्यू है, इससे I1 का वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू मस्ट बी लेस. So angle of incidence must be less than this value. Wow. Right. হয়েছে, লেখা হয়েছে, আমি পাঠিয়ে দেবো, পিডিএফটা পাঠিয়ে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি. ওয়েট করবো, হয়ে গেছে. চলো নেক্সট পেয়ে যাই. चलो RS अलाउड, हाँ, और एटार नाम दी दो RS डैश. RS डैश এই পিকচারটাই চলে এসো. RS डैश नॉट अलाउड माने नो इमरजेंस. इसका हो गया नो इमरजेंस. चलो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए? इसका कंडीशन होना चाहिए कि I1 फॉर नो माने नो इमरजेंस मस्ट बी लेस देन, वो वैल्यू कितना आया था? साइन इनवर्स, फिर कितना था? साइन ए, देन म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस ए. दिस मस्ट बी द रिलेशन. सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये पेज, बोथ कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम, this derivation. But if someone derives this, the student is more confident for competitive exam as well, because ना क्लास 12 सिलेबस है थियोरी थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्लोज, वेरी क्लोज. एनीवे, तो चलो नेक्स्ट पार्ट ऑफ नो इमरजेंस. नंबर 2, केस नंबर 2, ड्रॉ द सेम पिक्चर लाइक दिस. लेकिन जल्दी करो, बहुत सीख लिया, क्लास 12 हो चुका है. नॉर्मल I1, same picture draw करना, incidence on this, then again normal, and the ray refracts grazing this surface. Refracts grazing this surface, ABC. इसका नाम दे दो और इसका नाम PQRS दे दो. फिर से ऐसा हो रहा है, लेकिन इस बार किस लिए? इस बार वो जो दुकानदार था ना, जिससे प्रिज्म खरीदे थे, उनका पास जाएंगे इस बार. दैट मीन्स कि भाई साहब एक प्रिज्म ऐसा देना जिसका ये जो एंगल है ना, ये इतना वैल्यू का दो. कितना? वी आर गोइंग टू फाइंड दैट आउट. कितना? सो दिस टाइम I1 वी आर नॉट चेंजिंग. I1 चेंज नहीं करेंगे, तो किसको चेंज करेंगे? A को. सो लेट अस सी दिस. चलो फ्रॉम द पिक्चर देखो फिर से. दिस वाज R1,
this was R2, but this R2 is none other than, ladies and gentlemen, IC, critical angle, because this is 90 degree. ठीक है, अब 90 डिग्री ठीक ठाक हो जा. So let us write this. Case number 2. Write A equals to R1 plus R2. We understand this. Then R1 can be written as sine inverse sine I1 by mu. Mu is this mu. And R2, that is critical angle IC. Write it. यहां पे करता हूं इसको. A equals to R1 plus R2. ओके, ये R1 ये कैसे हो गया? साइन इनवर्स साइन I1 बाई म्यू, ये सब कहां से? मैं बोला था स्नेल्स लॉ, बिकॉज देयर वुड बी नो थ्योरी इन रिफ्रैक्शन चैप्टर वेयर वी डोंट रिक्वायर अ स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ हमेशा चाहिए एवरी थ्योरी में. तो यहां पे स्नेल्स लॉ क्या था? अभी तो लिखे थे, ये एयर था, एयर का म्यू 1, एयर का, सो 1 इंटू साइन I1 इक्वल्स टू, यहां पे म्यू है, म्यू इंटू यहां पे एंगल R1 है, साइन R1. दैट मीन्स व्हाट? साइन R1 इक्वल्स टू साइन I1 बाय म्यू. सो R1 इक्वल्स टू साइन इनवर्स दैट. और ये R2 का क्या हो गया? R2 इज क्रिटिकल एंगल, दैट्स व्हाई IC लिख दिया. ओके, तो अब नेक्स्ट लाइन ऐसे लिखो, A इक्वल्स टू, अच्छा A इक्वल्स टू मत लिखो अभी ना, एक लाइन ऐसा करो, देखो फॉर A टू बी मैक्सिमम. किस लिए मैक्सिमम? A तो कितना भी हो सकता है, दुकानदार का क्या है, वो तो फैक्ट्री में बनता है, तो फैक्ट्री वाला कितना भी A बना के दे देगा तुमको प्रिज्म. तो A का मैक्सिमम वैल्यू माने क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A किस लिए? फॉर इमर्जेंस ऑफ द रे, फॉर द रे ऑन RS emerges out. आउट आएगा उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू, सो दैट द रे कम्स आउट. ये तो आया है RS, उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A कितना हो सकता है? अच्छा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो नाउ राइट A मैक्स इक्वल्स टू R1 साइन इनवर्स. यहां पे वेरिएबल कौन है? वेरिएबल, हु इज अ वेरिएबल हियर? राइट साइड है, राइट साइड में वेरिएबल कौन? एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले भी बोला था, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1. दैट मीन्स दिस वन इज द वेरिएबल. अच्छा, अब ये बता दो, इफ द लेफ्ट साइड हैज टू बी मैक्सिमम, तब तो राइट साइड को भी मैक्सिमम होना है. नाउ वंस द म्यू इज फिक्स्ड, so the IC critical angle is also fixed. तो वेरिएबल और किसको होना है? बस I1, इसको मैक्सिमम होना है I1 को, then only the value of the left side will be maximum. Now tell me what can be the maximum value of angle of incidence? 90 डिग्री. 90 डिग्री, उससे ज्यादा एंगल हो नहीं सकता है. नॉर्मल का साथ कितना एंगल में ये लाइट गिर सकता है? 90 डिग्री. ऐसे इससे ज्यादा तो एंगल हो नहीं सकता. ऐसे लाइट गिरा ग्रेजिंग द सरफेस, तो नॉर्मल का साथ एंगल 90 डिग्री मैक्सिमम हो सकता है. दैट मीन्स प्रैक्टिकल आइडिया का साथ फिजिक्स को मैच कराओ. दैट मीन्स इफ यू वांट A मैक्स, मैथमेटिक्स क्या बोल रहा है? राइट साइड में जो वेरिएबल है उसको भी मैक्सिमम कर दो. देख रहे हैं कि वेरिएबल ओनली वन है, म्यू और IC फिक्स है, सो वेरिएबल इज ओनली I1, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है. सो वी गेट व्हाट? मजा आ गया भाई. कैसे? मजा तो अभी तक आया नहीं, अब आएगा. कैसे? ये देखो, ये हो गया साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, ये 1 हो गया, और ये IC रहने दो. लेकिन भाई साहब, इससे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जाना पहचाना लग रहा है. ये कब होता है? साइन इनवर्स 1 बाई म्यू IC critical angle. So sin inverse 1 by mu is nothing but IC. तो ये भी IC है, वो भी IC है, तब तो ये double of IC हो गया. Yes, that is the answer. We got it. That means A can be maximum
इफ इट इज इक्वल टू डबल IC, किस लिए? लाइट नहीं निकलेगा? नहीं, लाइट कम्स आउट, लाइट इमर्जेस आउट, तब ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इससे अगर ज्यादा हो गया तो ना, तब नहीं निकलेगा। सो लिखोगा ना, ए मैक्स equals to 2IC. This is the shortcut, simple method for MCQ purpose, maybe assertion reasoning and other things, and maybe for your board exam proof. Maximum इतना होने से लाइट निकलेगा, and for no emergence, A of the prism must be greater than 2IC. A of the prism must be greater than 2IC. कब? No emergence. For no emergence, A must be greater than 2IC. बताओ तो, if we take a pure glass, normal glass, अच्छा सा, of RI 1.5, what is the critical angle of glass? Mu 1.5, critical angle value, you know that, 42 degree. 42 degree. So what is the double value of 42 degree? 84 degree. 84 degree. What about choosing a prism that has ABC, where A is 90 degree? Is it greater than 84 degree? Yes. So will there be any emergence of the ray from the other side of the prism if we incident ray on this? No. That's why we use right angled isosceles triangular prisms. ऐसा प्रिज्म को क्या बोला जाता है? टोटल रिफ्लेक्टिंग prisms. क्लास 10 में भी पढ़ के आए हो, पेरिस्कोप में लगाते हैं. हाउ? बाय creating deviations in prisms. We have drawn those pictures, deviations of prism. We have drawn those pictures of prism. If we haven't, then we may draw this. कैसे? देखो नेक्स्ट पेज. एक तो ऐसे कर लिए, रे जो है ना ऐसे आ रहा था, बैक प्रोसेस सिखा रहा हूं, एक रे ऐसे आ रहा है, प्रिज्म का ना साइड ऐसे कर लो, मतलब कर लो ऐसे, हुआ? फॉलो करो. अब ना ऐसा करो एक, और उसका साथ ना ऐसे, so that this is 90 degree, this is 45 degree and this is 45 degree. तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा. Logic and all those things, you know this. ये सब बचपन का चीजें 55 में करके कोई लाभ नहीं है, because you have already done this. ये तो 45, ये 90, ये 45 होगा, ये भी 45, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज ग्रेटर देन 42 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्या ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये तो TIR हो गया, यहाँ पे 45 डिग्री में इंसिडेंट कर रहा है ये, दैट इज ग्रेटर देन 42 डिग्री. सो TIR, वंस TIR यहां से, तो ये 45 डिग्री होने से साइड का भी 45 डिग्री, और ये तो 45 डिग्री है ही, तो ये 90, दैट मीन्स विदाउट डेविएशन सीधा निकल जाएगा. तो इसका डेविएशन कितना हुआ? जाने वाला था लंदन, जा रहा है टोक्यो, दैट मीन्स ऐसे डेविएशन हो गया इसका. कितना डिग्री? 90 डिग्री. सो दिस इज द पिक्चर वेयर वी डेविएट अ रे बाय 90 डिग्री. लेकिन लाभ क्या है ऐसा डेविएट करके? लाभ ये है कि अगर हम लोग ऐसे आईना से कर लेते हैं ना, आईना, प्लेन मिरर, सिंपल, फुटपाथ में मिलता है प्लेन मिरर, ऐसे आईना कर लिए, प्रिज्म का क्या जरूरत है? Because mirrors absorb light and hence decreases the intensity of the image created. 100 जूल लाइट गिरा, 20 जूल ये खा लेगा, तो आएगा 80 जूल ना. So the image you would be looking at would be responsible for an intensity of 80 जूल, लेकिन ऑब्जेक्ट का 100 जूल, तो इमेज तो थोड़ा फेड लगेगा. ऐसा अगर और एक रास्ते में मिल गया तो और एक, लाइक ऐसे
ऐसे और ऐसे, क्यों भाई मिलेगा? क्यों हम लोग चाहेंगे ऐसा मिले? क्यों? ये लाइट जो आ रहा है ऑब्जेक्ट से ना, उसको हम लोग यहां पे देखना चाहते हैं, तो 90 डिग्री घुमा के लाभ नहीं, और एक बार 90 डिग्री घुमाना चाहते हैं हम लोग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वी वांट टू बिल्ड अ पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में ना ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी वो यहाँ पे प्रिज्म रखा हुआ रहेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। कितना घूम गया? 90 डिग्री। जाने वाला था लंदन, जा रहा है टोक्यो, कितना घूम गया? 90 डिग्री। एंड देन again it was going to head downwards, and then again by placing a prism at the corner we will rotate it, I mean deflect it by 90 degree again. तो इसमें 20% लॉस, इसमें 20% लॉस, तो दिखेगा क्या फिर? ये सबमरीन है नीचे और ऊपर में जहाज है, तो इसका तो फेड इमेज दिखेगा, वी कैनॉट सी प्रॉपर इमेज। तो इसलिए प्रिज्म यूज करते। क्यों? प्रिज्म में लाइट एब्जॉर्प्शन नहीं होता, नहीं होता भाई साहब। इसके लिए, किसके लिए? टी टर्म के लिए। टी स्टैंड्स फॉर टोटल, दैट मीन्स 100% एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड बैक विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। दैट्स व्हाई वी यूज प्रिज्म्स, और उसको इसलिए 90 डिग्री रखते हैं, सो दैट ए मैक्स must be greater than 2IC, और IC का वैल्यू we have just proved must be greater than, और IC तो पहले ही हम लोग निकाले थे 49 डिग्री। A का वैल्यू बोल रहा हूं, A का वैल्यू जस्ट we have proved 2IC होने से लास्ट रे निकलेगा। इफ इट इज ग्रेटर देन 2IC, नो इमर्जेंस। क्लियर कंसेप्ट हो गया सर? बोलो सर, फॉर नो इमरजेंसी যে কন্ডিশনটা ছিল A greater than 2IC, ওই পার্টটা বুঝতে পারিনি। মানে এই জায়গাটা, কোন জায়গাটা বল? এই যে এইটা, মানে A greater than 2IC। ও A equals to 2IC যদি হয়, A equals to 2IC এর ডাবল, তাহলে তো রে বেরোচ্ছে এখান দিয়ে, বেরোচ্ছে তো। এবার দেখো, ইফ IC দ্যাট ইজ R2 যদি TIR হতে হয় এই দিকে আসতে হবে, তাহলে R2 এর ভ্যালুটা R2 হ্যাজ টু বি মোর দ্যান দিস না লেস দ্যান দিস, এটা বলে দাও। মোর, ভেরি গুড। তাহলে R2 যদি, হ্যাঁ, তাহলে R2 যদি মোর হতে হয় R2, দেন A ইকুয়ালস টু তো R1 প্লাস R2, A ইকুয়ালস টু R1 প্লাস R2 তো। এবার দেখো, আমি তোমাদের শুরুতেই বলেছিলাম যে ডু নট থিঙ্ক অফ I1 কে কনস্ট্যান্ট বানিয়ে দাও, যে thinking that you would be incidenting light at a fixed angle. Now you want that the ray does not come out of the other surface. তাহলে I1 টা ফিক্স ধরো না, ফিক্স। তাহলে if I1 is fixed, so is R1 টা ফিক্স। তাহলে one component of A fixed. Now if you have to increase R2 second component, তাহলে the total value of A will increase না। Yes. That's why if you increase R2 TIR, that means you are increasing A. Why? R1 to fix, কেন না I1 তো has been held fixed at a fixed angle, তার মানে more R2 more A, because this is fixed। তাহলে more A কত করব না greater than 2R2, that is 2IC, that's why এইটা লিখলাম A greater than 2IC। হয়েছে? ওকে স্যার, ঠিক আছে, চলো। Next part is this thing. So similarly, if we keep a prism like this, but don't forget to draw the prism like this way, because if you place a prism like this, say ABC, and then if you draw lines like this, कैसे? ये ड्रॉ कर लिए तो इसका पैरेलल ना स्केल से, मतलब ऐसे ड्रॉ करना। इफ यू, मैं तो हाथ से ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम बस कैसे करना। ठीक है, हो गया। बीच में रेस गायब हो गया, गायब नहीं हुआ এটা কি ইনভার্সন ना। हाँ, इन्वर्शन माने 0 डिग्री डेविएशन। दिस इज द सेकेंड केस, दैट वाज 90 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री। लाइक द अपर रे will refract and hit the surface at a lower place, and the lower ray, नीचे का रे ना ऐसे गिरेगी,
एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऊपर उठ जाएगा ऐसे। एक्चुअली ये देखो ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं सिर्फ ड्रॉ करने का तरीका बताया, बिकॉज दिस में फेच यू 1 मार्क, ओनली 1 मार्क। স্যার हाँ बोलो। ভেতরে যে রেগুলো হচ্ছে ওগুলো প্রিজমের ওয়ালের সাথে প্যারালাল করবে কি? ভেতরের এগুলো ওটা ম্যান্ডেটরি নয়, ভেতরের এগুলো মানে তুমি বলতে চাইছো এইটার সঙ্গে এইটা প্যারালাল কিনা, এটা তো ম্যান্ডেটরি না, ওটা ম্যান্ডেটরি ওইটা ম্যান্ডেটরি নয়। নয়, তো এই রেটার সাথে এই রেটা প্যারালাল হবে। এইটা ম্যান্ডেটরি, এটা করো, হ্যাঁ। তাহলে দেখবে যে একবারেই ঠিক হবে। হ্যাঁ ঠিক বলেছো। আর দ্য লাস্ট থিং দ্যাট ইজ ইউ মে ড্র অ্যান অ্যারো। I am just drawing a candle. Why? Because अच्छा लगता है। This candle will appear here. ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, तुम ना you just take a little care so that size सेम रहे, like this, ठीक है। यही कैंडल को उल्टा ड्रॉ कर देना, like this, so that the point from P actually reaches here, P dash. Notice करो। Similarly, the point from Q actually reaches here, Q dash. रेज किधर जा रहा था सामने, मान लो ईस्ट का तरफ, फाइनली किधर जा रहा है, वेस्ट का तरफ, नॉर्थ का तरफ, साउथ का तरफ, किधर, सेम ही जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। So the rays have not deviated or rotated from their original path. That's why deviation is 0 degree. And yes, you said correctly that the object gets inverted. तो लाभ क्या भाई, खराब हो गया ना, सीधा ऑब्जेक्ट था, हम लोग सीधा देखना पसंद करते हैं, वो इन्वर्टेड हो गया, लाभ क्या हुआ, उल्टा सोचो। माने if by some method, উল্টো জিনিসটা সোজা যাবে। yes, if by some method, by employing lenses and other things, if you finally create a good image but invert it, then we will employ this prism कि भाई साहब आप जाओ मामला सल्टा दो। So this prism will again invert that without changing any intensity of the image. Why? Because TIR. And finally, lastly, you have done this, but फिर से एक बार बता रहा हूँ, बिकॉज एक बार देख लो इसको, फिर से एक बार बता रहा हूँ, बट यू हैव डन दिस। ऐसे एक बार ड्रॉ कर लो, दिस इज अ केबल लाइक दिस, স্যার অপটিক্যাল ফাইবার দুদিকের ওপেনিংটা দেখা যাবে না? ঠিক বলেছো, দাঁড়াও ওটা পরে করছি। স্যার বলছি আগের ওই রে পাথটা বুঝতে পারলাম না ভেতরে প্রিজমের। এইটা এইটা এই যে এটা নর্মাল, তাহলে ইট উইল বেন্ড টুয়ার্ডস দ্য নর্মাল। এই দিকে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এটা কোন দিকে বেন্ড হয়ে গেল, টুয়ার্ডস দ্য নর্মাল। তারপর কি হলো, এইখানে যখন পড়লো তখন ইট ইনসিডেন্টস অ্যাট অ্যান অ্যাঙ্গেল গ্রেটার দ্যান ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল, তাহলে ইট সাফার্স TIR। সিমিলারলি এইখানে যখন পড়ছে দেখো, এটা অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স, তাহলে ইট ওয়াজ সাপোজ টু মুভ অ্যালং দিস পাথ, না হয়ে ইট মুভস অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নর্মাল, সো ইট বিকামস লাইক দিস। বুঝলে? আচ্ছা, এরকম এটাও হবে, তাই সেকেন্ড রেসটা এখানেও তাই হবে। আর যেখানে দেখবে এরকম কনফিউশন থাকবে, ওটা না আবার তুমি এটা ড্র করবে, আবার নিয়ে না এইরকম ভেবে ভেবে ড্র করবে। দ্যাট মিন্স এরকম প্রিজম নেবে, এখানে রেটা ফেললে, নর্মাল করলে, তারপরে না এটাকে বেন্ড করাবে এইদিকে টুয়ার্ডস দ্য নর্মাল, আবার নর্মাল ড্র করবে। এখানে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন, রিফ্লেকশন এটা TIR, দেন আবার নর্মাল ড্র করবে এখানে, নর্মাল, দেন ইট উইল মুভ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নর্মাল লাইক দিস, বাট ট্রাই টু মেক ইট so away that this and this remain on the same line, this and this remain on the same line.
এবার তুমি বলতে পারো যে অমনি কেন হবে, গ্যারেন্টি কি আছে? গ্যারেন্টি নেই, বাট উই উইল ফাইন্ড আ প্রিজম লাইক দিস হুইচ গ্যারেন্টিজ দিস, বিকজ ইট অল ডিপেন্ডস দিস, এর ওপরে, ওই জন্য। হয়েছে? তো চলো নেক্সট পার্টটায় যাচ্ছি। এটা একবার প্র্যাকটিস করে নেবে, ড্র করে, কনফিডেন্স চলে আসবে দেখবে। এবারে কী হবে শোনো, দিস ইজ দ্য পিকচার যেটা তুমি বললে, এই লাস্ট পার্ট অফ দিস কীরকম হওয়া উচিত। উই ক্যানট সি বোথ সাইড সার্কেল ফ্রম দ্য টু এন্ডস, এটা বলেছিলাম। তো তার জন্য তাহলে কি করব, এক সাইডে সার্কেল ড্র করবে, এই সাইডের সার্কেলটা এরকম ড্র করবে। এটা এরকম যেন কাটা কাটা না হয়, সেম করো, হ্যাঁ, না হলে এই কেবলটা কেউ কিনবে না। তো এটা কেনাকিনির কি ব্যাপার আছে? কেবলটা আবার কেনাকিনি আছে নাকি? হ্যাঁ, এরকম আছে। স্মুথ যাতে হয়, হ্যাঁ, একটা স্ট্রোকেই ড্র করতে চেষ্টা করবে, সিঙ্গল স্ট্রোক। নাও এটাকেও এমনি করবে, সিমিলারলি এটাকেও এমনি করবে। ठीक है, ওই দিক থেকে ड्रॉ করে दो ना, गोल गोल दोनों को सीधा गोल कर दिए बिना डॉटेड लाइन का, तो भी चलेगा, डोंट वरी, मार्क्स काटবে না, ওটা ফর পারফেকশন। एनीवे चलो, नेक्स्ट पार्ट इज दिस, इफ अ रे इंसिडेंस like this. Acha, let me tell you what are this. You can compare this to with this thing. Suppose this is a cable wire of copper. Now above the copper there is a coating of rubber. এই জায়গাটাতে কি থাকে? কোটিং থাকে, রাবারের কোটিং থাকে, আর ভেতরে ইলেকট্রিসিটি যায় থ্রু দ্য কপার ওয়্যার। সো উই কল দিস ওয়্যার টু বি কোর। আর এই ওপরের পার্টটাকে আমরা বলি তো যে এর ওপরে কোটিং করা আছে, কোটিং মানে ইনসুলেশন। For electricity, it would be insulation and core wire. But for light, what do? We find a material like this, which is a refracting material, not like this. This is for electricity. I was citing an example only. This is a refracting material. Mane light can pass through it. Of Ri mu1. But as it lies at the center, this is called core. Core of a cable. And then it is, as it is given insulation on a copper wire for electricity. So here also we give a coating like this insulation. We give a coating that is again a refracting medium. This is also refracting medium. मतलब अगर लाइट को लगा कि हम बाहर जाएंगे, जा सकता वो रिफ्रैक्टिंग मीडियम, बट लाइट जाएगा ही नहीं। क्यों? लाइट बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं, it is being forced to do so. Why? Because the Ri of this medium would be somewhat different, so that mu1, that is mu of the core, मैं ऐसे याद रखने बोलता हूं, क्यों? Because ये 1 2 ना याद नहीं आएगा एग्जाम हॉल में। mu of the core must be greater than mu of this coating. This material is called cladding. माने this process, giving coating of another refracting medium is called cladding. So mu core must be greater than mu cladding. CLD लिख दिया। That means ये है, ये पिक्चर में mu1 must be greater than that. लाभ क्या होगा? If a ray tries to enter from denser to rarer, अब वो चाहे कितना भी पतला हो, that doesn't matter, बस इसका बाद नेक्स्ट मीडियम जो है वो अलग होना चाहिए। मोटा पतला doesn't matter, like मोटा पतला doesn't matter. So this thin layer of cladding doesn't matter, but what matters that it has a different Ri than the core. So what will happen if this holds good? It will suffer TIR, जाएगा ही नहीं बाहर, it will suffer TIR, and then again here it will suffer TIR.
again here it will suffer TIR. Everywhere it incidents, it suffers TIR. Like this, again TIR. So, if you want to send this light to this point, तो भाई साहब इसको सीधा क्यों नहीं भगा दिया ऐसे, जस्ट सेंड इट स्ट्रेट। तो ये सब करने का क्या जरूरत है? जरूरत है। आईपीएल फाइनल देख रहे हैं यहां पे टीवी में, आईपीएल फाइनल मैच कहीं दूसरा जगह पे हो रहा है, ये मैदान पे मैच, तो वहां से ये वीडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल को बनाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा वेव? EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड वी नो लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ होता है। सिमिलरली एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी उतना स्पीड होता है। सो इफ लाइट कैन फॉलो दिस पाथ, सो एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी सेंट लाइक दिस। और ऐसे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया ऐसे यहां से लेके यहां तक, सो वी कैन मेक अ केबल लाइक दिस दैट ट्रांसमिट्स एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनी माने तो वीडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, उसको सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएंगे। कैसे? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन अभी थ्योरी में नहीं है तुम लोगों का सिलेबस में, बट यू नो अ लिटिल बिट। अगर मालूम नहीं है तो अच्छा है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अदरवाइज ये समझ लो कि टीवी का जो सिग्नल है, that audio video signal transformed in the form of electromagnetic wave is also sent via such cables which are called optical fiber, which are called optical fiber. So this optical fiber is this thing. So what is optical fiber? Optical fibers are very thin cables made of how many refracting media? Simple बनाओ इसको, simple। 1 मार्क आएगा, 1 मार्क उसके लिए बनाओ, बाकी क्वेश्चंस तो पहाड़ जैसा बन जाएगा। 2 रिफ्रैक्टिंग मीडिया। 1 मार्क में ऐसे बोल रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। कैसे? असर्शन रीजनिंग। 2 refracting media, out of which the inner media is called core, the outer media is called cladding. Mu core must be less than mu cladding. हाँ कि ना? Mu core must be less than mu cladding. Greater than cladding. ये आएगा true false, assertion reasoning, MCQ ऐसे। समझ रहे हो? अभी जो लग रहा नॉर्मल असर्टिव सेंटेंसेस है, ये इंटरोगेटिव बनने में थोड़ा सा देरी है, अभी एग्जाम होने दो उसका बाद। तो बी प्रिपेयर फॉर दोज थिंग्स, लॉजिकल थिंग्स क्लियर। कोर एंड आउटसाइड क्लैडिंग, म्यू का हिसाब सीख लिए। सो एवरीवेयर इफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, सो वी कैन सेंड लाइट लाइक दिस, वी कैन सेंड द फैमिली ऑफ लाइट दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक दिस। सो वी अप्लाई दीज थिंग्स in case of audio video signal transfer, practically in cable TV cables। ऐसे ये जो टीवी केबल लगाते हैं ना, सेट टॉप बॉक्स, ये ऑप्टिकल फाइबर का बना हुआ, पहले और यूज होता था इसमें बिफोर सेट टॉप बॉक्स। तो एनीवे, और ये होता है इसका डायामीटर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रिमेंबर दिस, बट बताया नहीं जा सकता आजकल ना, नीट के लिए खास करके बोल रहा हूं। मे बी आ गया कि मे बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, आता है क्वेश्चन, मेंस में भी आ चुका है क्या? ये क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन, बट ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये क्वेश्चन आ चुका है। खास करके मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा आता है, बट थोड़ा सा याद रखो ना, इतना मीटर मानो 1 माइक्रोमीटर कॉल्ड माइक्रोन। चलो, तो ये हो गया। नाउ वी आर गुड टू गो विथ दिस थिंग्स। व्हाट दिस थिंग मीन्स? रिफ्रैक्शन, हेडिंग दाओ, ऑन कर्व्ड surfaces
सरफेस बोले, सरफेस बोल के लिखो, रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस। ये कर्व्ड सरफेस ड्रॉ करो, कॉपी का ऐसे बीच में ड्रॉ करना, देन इसको स्ट्रेट पीछे बढ़ाओ, बस ऐसे करके छोड़ दो, यहां पे एंड मत करो, ऐसे। दैट मीन्स दिस होल मीडियम इज μ2, अ डेंसर मीडियम। सोच लो μ2 को डेंसर सोचेंगे हम लोग हमेशा, ये थ्योरी में म्यू2 को डेंसर सोचेंगे, नहीं ऐसा कोई बात नहीं कि यू नीड टू रिमेंबर दिस, लेकिन इफ यू रिमेंबर थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस शॉर्टर हो जाएगा। इफ यू रिमेंबर दिस, म्यू2 को डेंसर मानेंगे, चलो म्यू2 हो गया डेंसर। अच्छा, दिस इज अ कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस माने ये चश्मा, कर्व्ड सरफेस। So if it is a curved surface, we know for a curved surface, the middle point is called a pole. इसको पोल बोलते हैं, क्लास 9-10 का आइडिया लगाओ, फिजिक्स में किए थे। और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज कर्व्ड सरफेस का मिडिल पॉइंट, कर्व्ड सरफेस का मिडिल पॉइंट। बाकी जियोग्राफी में ज्यादा आइडिया नहीं है, पूछना मत, सिंपली याद रखने के लिए बोला। मिडिल पॉइंट ऑफ दैट कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड अ पोल। नाउ ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस, इधर भी उधर भी, this principal axis. On the other side of this denser medium lies the rarer medium, μ1. ठीक है, inside the denser medium draw an object, draw an object। मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट है O, ऑब्जेक्ट O, draw it with me, हाँ, don't lag behind। অন্য ড্র করছো তো, অন্য আমার সঙ্গে সঙ্গে ড্র করো, সো দ্যাট কোথাও প্রবলেম হলে জিজ্ঞেস করবে, আমি সঙ্গে সঙ্গে আনসার দেবো। হ্যাঁ, এইখানে ডোন্ট ওয়েট ফর দ্য হোল থিওরি টু বি কমপ্লিট। তাহলে কী হবে, যেখানে প্রবলেম হবে যে না স্যার এই জায়গাটা একটু অসুবিধা হলো, আই উইল अगेन এক্সপ্লেন ইট। ঠিক আছে, চলো বলবে আমাকে, এটা সিধা ড্র করে হয়ে যায়। সো নাও দিস ইজ অবজেক্ট। Now about ray diagram, I have told you how to draw ray diagram। क्या बोला था, at least how many rays need to be taken to form an image, माना draw an image, 2। उसमें से एक रे को कैसे मैं इंसिडेंट करने के लिए बोला था, 1 रे नॉर्मल इंसिडेंस, माना परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये पोल का ऊपर ये टेंजेंट होगा, टेंजेंट का साथ परपेंडिकुलर कौन, यही परपेंडिकुलर। व्हाई, बिकॉज इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर लो, सी ऐसे करके। वो भी ना बाद में ड्रॉ करने से बेटर होगा, बाद में। व्हाई, देखो मैं दिखा रहा हूं, बाद में ड्रॉ करने से क्यों बेटर होगा मैं दिखा रहा हूं। पहले ये बता दो एक बार, लेकिन इसको इरेज कर दूंगा, बट लास्ट चांस फॉर दोज हु डोंट हैव मैथमेटिक्स। फॉर अ सर्कल द रिलेशन बिटवीन अ रेडियस एंड अ टेंजेंट is perpendicular। बहुत ही अच्छा रिलेशन है दोनों का, रेडियस एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर फॉर अ सर्कल। दैट मीन्स इफ देर इज अ रे दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दैट सर्कल और सर्कुलर apparatus or instrument for optics, if a ray passes through C along the radius, then it is guaranteed that the ray along the radius that is passing through C incidents on the tangent normally, perpendicularly। So if it is a refraction case, it will not refract, it will move straight। And in mathematics, any straight line passing through center would be perpendicular on the tangent। Even if we do not draw the tangent, then तब भी ये perpendicular ही रहेगा, even if we do not draw the tangent। ठीक है, तो यही करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं करेंगे, क्या नो, बिकॉज हायर क्लास है, क्लास 12। चलो, ऑब्जेक्ट से एक रे में ऐसे लिया और दूसरा रे मैं बोला था सेकेंड रे मास भी ऑब्लिक इंसिडेंस, माने थोड़ा टेढ़ा करके गिरेगा, मतलब थोड़ा साइड में ले लो। बट याद रखना ये दोनों रेज ओ पी एंड ओ ए, चलो इसका नाम ए दे देता हूं, OP and OA are very close relative, relatives मत लिखना, रे लिखना, rays, a very close rays।
वेरी क्लोज माने ये एंगल बहुत ही स्मॉल है, ये एंगल, दैट मीन्स दीज आर वेरी क्लोज। अब इतना क्लोज ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, तो ड्रॉ कैसे करूंगा फिर ट्रायंगल एंगल? दैट्स व्हाई वी आर ड्रॉइंग इट अ लिटिल सेपरेट, ओके। बिकॉज एज अ स्टूडेंट ना मुझे भी ये लगता था वेरी क्लोज बोल रहे हो, इतना गैप करके ड्रॉ कर रहे हो, ये एंगल थोड़ी छोटा है। बट फॉर ईज ऑफ बीइंग सीन दिस रेज हम लोग इसको गैप में ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। चलो ओपीओए हो गया। नाउ कम्स द कंटेक्स्ट ऑफ सी, दैट मीन्स अब क्या ड्रॉ करना चाहिए? नॉर्मल। नॉर्मल कैसे? ये टेंजेंट और उसका साथ परपेंडिकुलर ना, ऐसे नहीं करेंगे। तो अभी थोड़ा देर पहले जो आइडिया दिखाया था वो करेंगे। कैसे? वी विल नॉट ड्रॉ दिस टेंजेंट, देन वी विल जस्ट ड्रॉ अप डॉटेड लाइन टू शो एज अ नॉर्मल। तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे? कुछ है प्रोटेक्टर या तो स्केल? नथिंग, रफली ड्रॉ करने से ही चलेगा। जस्ट मेक श्योर इट लुक्स अ लिटिल स्ट्रेट, नॉट लाइक दैट वन दैट आई हैव ड्रॉन। थोड़ा सा स्ट्रेट ड्रॉ करना, ऐसा। So just draw a normal passing through this, like this, ऐसा, ठीक। Now that normal hits at this point on the principal axis, that is C. That's why I was telling you that do not from beforehand draw C. Then you will be forced to draw this passing through that point. Despite the fact कि ये वैसे नॉर्मल लग नहीं रहा है, फिर भी यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? तुम पहले से ही C को ड्रॉ कर लिए। और यहां पे क्या लाभ है? एडजस्ट करके आगे पीछे करके इसको ड्रॉ कर लो, इसको ये नॉर्मल पिंक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिए, जहां पे वो हिट किया कॉल दैट पॉइंट सी, दैट इज योर फ्रीडम। इसलिए चलो इसको पहले ड्रॉ कर लेना, बाद में सी लिखना। हो गया। चलो तो ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना आई, एक ही रिफ्रैक्शन होगा, एक ही। सो दैट्स व्हाई ओनली आई एंड ओनली आर। नाउ द ग्रीन लाइट, ये तो ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा, the green light। ऐसे क्यों? Because it was supposed to move along this, लेकिन as it comes out of denser medium to a rarer medium, पहले बोल चुका हूं, so it would refract towards the away from the normal। ये रहा normal, away from the normal, so that's why this bends like this। so this angle is R, and as the incident rays, ये दोनों ढिचक्याओं and ढिचक्याओं, these two rays after this medium meet at a point, so this create an image, these rays create an image that is real। why? Because rays meet at a point to create real image, okay। so this is the case। ray diagram drawn। if you have any doubt please ask me, if you have any doubt। ray diagram, otherwise देखो हाथ में जितना फिंगर्स है, एक हाथ में उतना एंगल्स आना चाहिए इसमें। कितना? 5। हाउ मेनी एंगल्स वी कैन सी हियर? 2। कौन कौन? आई एंड आर। तो और 3 कहां से लाऊं? और 3 बेस का साथ लाओ। ऑब्जेक्ट अल्फा, इमेज बीटा, इमेज बीटा, बीटा थोड़ा अच्छा दिखा करो, इमेज बीटा, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में गामा। These are the 3 angles: object alpha, image beta, and center of curvature gamma with the principal axis. These 3 angles additional, and in addition to I and R. Now we will be focusing on a single mathematical idea, थोड़ा higher level है, that is exterior angle equals to sum of opposite interiors। ये हाई फाई मैथमेटिक्स थोड़ा लगेगा इसमें। तो फर्स्ट और एक चीज बता रहा हूं, देयर वुड बी नो, so there would be no theory like this avoiding Snell's law। we will start with Snell's law। चलो चलाते हैं, Snell's law से शुरू करते हैं। बट करने से पहले एक बार प्लीज ये बता दो, कैन यू सी एनी
राइट एंगल ट्राइंगल हियर, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जो भी ड्रॉ किया हुआ है यहां पे, एनी राइट एंगल ट्राइंगल? आंसर इज नो. सो ड्रॉ वन. नॉर्मल एन ड्रॉ कर लो सो दैट दिस इज परपेंडिकुलर. किसी एक साइड में दिखा दो. So AN, that is normal drawn on the principal axis. AN drawn on the principal axis. चलो हो गया. अब तुम लोग कॉपी देख देख के मुझे बताना. मैं ऐसे नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, कुछ दिखाई नहीं देगा नेक्स्ट पेज में. सो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ. म्यू 2 में था ऑब्जेक्ट और वहां पे एंगल बना था I. म्यू 1 में जब गया देन द एंगल बिकेम R. तो ये फॉर्मूला था. फ्रॉम दिस म्यू 2 इंटू आई म्यू 1 इंटू आर. लॉजिक. वेरी स्मॉल एंगल. कंसिडरिंग आई एंड आर वेरी स्मॉल. कंसिडरिंग आई एंड आर वेरी स्मॉल. एंगल स्मॉल होने से साइन थीटा थीटा हो जाता है, सो साइन आई आई बन जाता है. सिमिलरली साइन आर आर बन जाता है. एंड देन कम्स दिस थिंग म्यू 2. चलो आई एंगल है. योर टास्क, लुक एट एन एंगल आई, try to relate I within a triangle so that exterior angle equals to sum of opposite interior angles. I वाला कोई रिलेशन बताओ जहां पे एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल को लिख पाएंगे. I एंगल प्लस अल्फा इक्वल्स टू गामा. This exterior angle equals to I plus अल्फा. तो I कितना हो जाएगा, I एंगल कितना हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा. देखो ठीक से, और एक बार देखो इसको ऐसे, I इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा. चलो लिखते हैं, I का बदले में लिखते हैं गामा माइनस अल्फा equals to mu1. Now consider same relation with R. R से कोई ट्राइंगल देखो जिसमें इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल को इक्वल कर सकते हैं. गामा प्लस बीटा. Very good, very good. This is R. This is the exterior angle of this triangle. ये ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है. तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है R, that would be sum of opposite इंटीरियर एंगल्स. ये एंगल है गामा और ये एंगल कौन है, बीटा. सो वी कैन राइट R इक्वल्स टू गामा प्लस बीटा. R इक्वल्स टू गामा प्लस बीटा. चलिए इसको लिखते हैं. नेक्स्ट पेज. R के बदले में गामा प्लस बीटा. अब ध्यान से सुनना, जल्दबाजी मत करना. टोटल का tan नहीं लेना, अब tan लेना. tan क्यों, हम लोग धूप में जाएंगे, धूप में जाएंगे बोल जी. हम लोग क्या करेंगे, tan लेंगे बोथ साइड का, लेकिन इंडिविजुअल tan. ये कैसे लिया जाता है, मैथमेटिकली अलाउड है. अलाउड है इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल. लाइक सपोज इफ वी राइट a इक्वल्स टू b, तब तो tan a इक्वल्स टू tan b लिख सकते हैं. लेकिन अगर ऐसा a इक्वल्स टू b प्लस c, तब ऐसे लिख सकते हैं tan a इक्वल्स टू tan b प्लस tan c. ये लिखना ठीक नहीं है. एक कारण से ठीक हो सकता है. कौन सा कारण, इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल देन वी कैन राइट इट
हाउ कौन सा? very small. हाँ, तो लॉजिक पार्ट इज दिस, लॉजिक पार्ट दैट इज इफ थीटा इज वेरी स्मॉल थीटा, देन थीटा नियरली इक्वल्स टू साइन थीटा. साइन थीटा भी कितना हो जाता है? नियरली इक्वल्स टू टेन थीटा. सो थीटा वेरी स्मॉल होने से साइन थीटा टेन थीटा दोनों ही थीटा का इक्वल हो जाता है. तो इसका रिवर्स भी ट्रू है. दैट मीन्स इफ वी हैव एनीवेयर एन एंगल थीटा व्हिच इज वेरी स्मॉल, हियर इसको देखो, if we have an angle theta which is very small, then we can make it tan theta. So we have an angle very small, कौन? Gamma. So we can make it tan gamma. Both give same result. Similarly, if we have angle very small alpha, we can make it tan of that, tan alpha. So for the right side, चलो फटाफट अब गामा को tan gamma बनाओ, बीटा को tan बीटा बनाओ. मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इन दिस लाइन. क्यों? वो ना पूरा का tan ले लेता है और इधर भी पूरा का tan ले लेता है. डोंट डू दैट. इंडिविजुअल tan लेना. एंड नाउ इफ यू आर कंसिडरिंग tan गामा, ये देखो अब ये पिक्चर थोड़ा सा खराब होने जा रहा है. क्यों? बिकॉज गामा से कोई ट्राइंगल मैं शेड करूंगा. अच्छा ठीक है, शेड को हटा भी दूंगा, चलो ठीक है. गामा एंगल कहाँ है? गामा हाजिर हो गया. ये इस गामा से ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. नहीं तो tan थीटा कैसे होगा? राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए ना. तो वी हैव डन दिस. ये देखो, उसीलिए तो ड्रॉ किए थे, सो दैट वी गेट अ राइट एंगल ट्राइंगल. दिस वन शेडेड विद गामा. तो tan गामा कितना हो जाएगा? यहां से परपेंडिकुलर AN और बेस CN. अभी मत लिखो, एक चीज और बाकी है. स्टेटमेंट 1 लिखा था यहां पे, स्टेटमेंट 2 लिखा था यहां पे, स्टेटमेंट 3 लिखो, नहीं तो ये प्रूफ नहीं होगा. स्टेटमेंट 3 यहीं पे लिख दो, जहां पे wherever you have written these two, please write this close to them so that you don't forget this. क्या? एपर्चर या तो कर्वेचर, जो भी लिखोगे एपर्चर ही लिखो. एपर्चर ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज स्मॉल. ये हम लोगों को लेना पड़ेगा. एपर्चर स्मॉल है. एपर्चर बिग माने ऐसा इतना बड़ा जगह है. एपर्चर स्मॉल माने इतना सा है बस. एपर्चर और स्मॉल माने ऐसा है. एपर्चर का ইন্টেন্সিটি ডিফারেন্স হয়ে হ্যাঁ, সে তো হবেই হবে. বাকি অ্যাপারচারের অ্যাকচুয়াল মানেটা কি? অ্যাপারচারের অ্যাকচুয়াল মানে না অ্যাপারচার का, मैं इसका नीचे दिखा देता हूँ, बट आई विल नॉट सेंड यू इन PDF, पर एपर्चर का माने इसका नीचे दिखा दे रहा हूँ. देखो, इफ वी हैव अ सरफेस लाइक दिस, इट मे बी अ कर्व्ड मिरर भी हो सकता है. इट मे बी अ लेंस भी हो सकता है. इट मे बी अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऐसा भी हो सकता है. चश्मा डाल दो लाइक दिस, ऐसे. तो कुछ भी हो जाए, इफ अ बेंड सरफेस इज द कर्व्ड सरफेस, this line joining the two ends is called linear aperture. linear aperture, linear सीधा, aperture माने ओपनिंग, कि इसका मुंह जो है ना ऐसे, ये इतना लंबा है, कितना? AB. अदरवाइज इसका सेंटर तो होगा कहीं ना कहीं. If it is a part of a spherical surface, then it at least should be having a center somewhere. C. Then the angle made by the two extremities A and B at the center of curvature is called angular aperture. Linear aperture size
एंगुलर एपर्चर, द एंगल। एपर्चर का माने क्या है? सिंपल माने, एपर्चर का माने ये है ओपनिंग। अगर मैं इसका बात कर लूँ ना, तो इसका एपर्चर ये है, ये जितना ओपन है ये कटोरा, दैट इज कॉल्ड द एपर्चर। चलो चलो चलो, आई होप यू आर राइटिंग दिस। জল খেয়ে নিলাম। एंड इफ वी टॉक ऑफ द एपर्चर, তাহলে ये ग्लास का जो एपर्चर है दैट इज दिस ओपनिंग, তাহলে दिस ओपनिंग इज लेस देन दिस ओपनिंग, सो दिस हैज लेस एपर्चर देन दिस, ये मान है। तो एपर्चर माने ओपनिंग, लेंस का एपर्चर ओपनिंग, आईज का एपर्चर प्यूपिल साइज, those are apertures. Diameter of the pupil DP, उसको बोलते हैं आईज का एपर्चर। एनीवे, सो एपर्चर माने क्लियर हुआ। तो तीसरा assumption क्या बोले? नेक्स्ट assumption is this, aperture of the curved surface is very small। इसका साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या रिलेशन है? मान लो फॉर्मूला तुम्हें दे दिया, फिर बोला कि दिस ओनली ट्रू इफ μ2 greater than μ1, aperture very small, ray is in the object is in the denser medium object and image is in the rarer medium, image is real, all of the above। हो गया MCQ लो। तो anyway, तो these are the things। चलो, explanation things are all done, now we can proceed forward। how? tan gamma, फटाफट बोलो आप। tan gamma from this shaded AN by CN, AN by CN लिख रहा हूं मैं, AN by CN। अच्छा, यहां पे एक चीज देख लो, ये P पॉइंट याद है? तो P पॉइंट एक बार लास्ट देख लो एक बार। This was the pole P, middle point of that curved surface. So if the aperture is small, ये जान के लाभ क्या हुआ? ठीक है, small aperture, जान के लाभ क्या हुआ? जान के ये लाभ है NP बोल के जो गैप है ना, NP, अगर यही चीज is very small, then this gap is also very small. So NP is neglected। लिख कर रखो, NP is neglected, ignored। माना whatever distance is from N, समझो समझो इधर, whatever distance of any other point is from N is the same distance from P also। N से जो दूरी P से वही दूरी। क्यों? N और P का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, स्मॉल है। क्यों? बिकॉज यू हैव कंसिडर्ड दैट दिस एपर्चर इज स्मॉल, दैट वुड बी द इफेक्ट। तो चलो पहले n से ही बोलो, an बाई सी एन माइनस, हाँ, tan अल्फा कितना हो जाएगा? tan अल्फा an बाई ओ एन नगी, मैं तो देख नहीं पा रहा हूं, वापस जाना पड़ेगा। ये तो an परपेंडिकुलर बाय, ये हो जाएगा ना बेस, क्योंकि अल्फा अगर निकालना तब तो यू हैव टू थिंक ऑफ दिस ट्रायंगल। बोला था ना ट्रायंगल खराब हो जाएगा देखने में। सो an बाई ओ एन, an बाई ओ एन, ओके। देन tan गामा mu1, tan gamma, gamma was again an by cn plus tan beta image, so that was an by in। an by in। Sir, IN टाके तो 3 है लेकिन because NP is very small। But later, in the next line we will be doing. This is I, huh? So if you are thinking of beta, tan beta would be this perpendicular same an, and this is the base then. How much is this? In.
that's why what is appearing there. Anyway, chalo, let us be back there. So with these, let us do a little calculation. टेक्निक ट्रिक समझो. μ2 ओके, दो चेंजेस एक लाइन में करना पड़ेगा यहां पे, दो चेंजेस. व्हाट आर दोस चेंजेस? नंबर 1, एज वी सी एवरी न्यूमैरेटर कंटेन्स an, तो an को कैंसिल कर दिया बोथ साइड्स. ऐसे काटने का जरूरत नहीं, लिखेंगे नहीं उसको. तो 1/-1 इक्वल्स टू μ1 into 1/- plus 1/. That means an सबसे कैंसिल कर दिए. सेकेंड पार्ट, we will replace, second change, we will replace n by p. क्यों? n से जो डिस्टेंसेस है, सपोज कि nc इज सेम एज p से जो डिस्टेंस है pc, एक ही बात होगा क्योंकि ये n to p नेग्लिजिबल. So let us replace n letters by p. That is the technique. जहां पे n है उसको p लिख दो. cn cp, on op. यहां पे क्या है? cn cp. यहां पे क्या है? in ip. That is the technique. So two changes, same line. And now comes the final part. That is, we know the convention of thinking of डायरेक्शन ऑफ लाइट जिधर होगा, एनी डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल. सारे डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाता है? पोल से. वी नो दिस. एनी डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल. दोज डिस्टेंसेस आर, इफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट देन दैट वुड बी प्लस, इफ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट देन माइनस. लाइक लाइट कहां से आया? लाइट तो दिख ही नहीं रहा है. क्यों नहीं दिख रहा है? ये ऑब्जेक्ट है ना, तो लाइट कहां से आती है? फ्रॉम ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे गिरे, हम लोग तो सोचेंगे ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे आ रहा है. सो इफ वी थिंक दैट लाइट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऐसे. सो एनी डिस्टेंस मेजर्ड इन दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव एंड एनी डिस्टेंस मेजर्ड इन दिस डायरेक्शन विल बी नेगेटिव. स्टार्टिंग फ्रॉम P, याद रखना, स्टार्टिंग फ्रॉम P. सो इफ वी मेजर अ डिस्टेंस PC, लाइट का ऑपोजिट में नेगेटिव, बट PC would be radius of curvature. PC radius of curvature वो क्या चीज है? If we draw any curved surface, यहां पे देखो, if we draw any curved surface, then there is a center, then this is the radius. So this is called radius of curvature. और इसको क्या बोलते हैं? Center of curvature. So center to the circumference is called radius. ये सिंपल माने हैं. तो यहां पे हम लोग सेंटर कहां पे लिए? C. तो C from pole will be radius. Center to circumference. ये रेडियस R प्लस ना माइनस? माइनस. क्यों? लाइट सामने जा रहा है. हम लोग R P से किधर मापेंगे? पीछे. That's why R would be negative. चलो हो गया, R नेगेटिव. बाकियों का इजी. ये तो P पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मापेंगे. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये माइनस U. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U, ये ऑपोजिट में जा रहे हैं माइनस U. ये तो इमेज डिस्टेंस P थे, फ्रॉम P से मापेंगे इमेज डिस्टेंस. ये तो P टू दिस, इमेज डिस्टेंस को बोलते हैं V. प्लस ना माइनस? सेम डायरेक्शन, प्लस. लाइट सामने, ये डिस्टेंस भी सामने. प्लस माइनस मींस जानते हो क्या है? लाइट फॉल्स ऑन दिस सरफेस अलोंग आई कैप, माने पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो जो भी डिस्टेंस इधर होगा प्लस, जो भी पीछे होगा माइनस. हो गया. उस हिसाब से देखो, 3 थिंग्स: U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज डिस्टेंस एंड R रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये तीनों का रिलेशन हम लोग बैठाने जा रहे हैं. लेट अस पुट दैट. यहां पे नेक्स्ट लाइन अब आ चुके हैं, लास्ट लाइन का तरफ बढ़ रहा है. अब दिस इज लॉजिक पार्ट. इसको छोटा कर देता हूं. दिस इज लॉजिक पार्ट ओनली. ठीक, यहां पे कर रहा हूं. Let me do it here. क्या? μ2
1 by CP, CP कौन था? C2P, पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर माने रेडियस ऑफ कर्वेचर, माइनस R, साइन समेत बैठाना, साइन समेत, माइनस OP, 1 by OP, 1 by OP, OP कौन था? P माने पोल और O माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस U, तो you are getting it, you are getting it, माइनस U इक्वल्स टू μ1 इंटू 1 by CP, CP फिर से पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, नेगेटिव साइन, प्लस 1 by IP, P टू I माने इमेज, पोल टू इमेज माने इमेज डिस्टेंस V, प्लस ना माइनस, वो तो प्लस आया था, सबको ब्रैकेट के अंदर लिखे, U माइनस R माइनस V प्लस, बैठा दिया। नाउ इट वुड बी आवर टास्क, जस्ट ऐसा कर लो, V और U को एक साइड लाओ, तो V और U सेम साइड एज वी डिड इन अवर क्लास 10, 1 by V माइनस 1 by U, V और U को एक साइड, बाकी R वाला टर्म जो होगा ना नीचे, उसको राइट साइड में लेके चलो, बस दैट इज योर टास्क। तो सर U1 minus U2 by R is equal to 1 by V2. So finally you will be getting something by V। देखो फिर से बता रहा हूं, टेक्निक समझो, टेक्निक को समझो, बिकॉज डोंट ट्रीट दीज फॉर्मूलाज स्पोरेडिकली कि कैसे भी कर लिए, ये आ गया, मैच कर गया बुक का साथ, चलो हैप्पी। नो, डोंट बी हैप्पी, देन बी हैप्पी बाय मेकिंग अ सिस्टम कि अब से अगर इसका ऊपर साम आए, थ्योरी आए, शॉर्ट क्वेश्चन आए, एमसीक्यू जो भी आए, आई विल फॉलो दिस सिस्टम। वो टेक्निक क्या है? ये है टेक्निक, क्या है? ये है, देखो इधर देखो, समथिंग बाय, ऐसा लिख रहा हूं, वन नहीं लिखेंगे, समथिंग बाय भी आएगा ही, माइनस समथिंग बाय यू आएगा ही, यहां पे समथिंग बाय भी आएगा, समथिंग बाय यू आएगा। फिर से लिख रहा हूं यहां पे, देखो नेक्स्ट लाइन, यहां पे लिख रहा हूं, कलर चेंज, समथिंग बाय भी माइनस समथिंग बाय यू इक्वल्स टू, उधर क्या आएगा? समथिंग बाय आर। दिस इज मस्ट, होना ही है इसको, समथिंग बाय आर। लेकिन टेक्निक ये है, टेक्निक बाद में बता रहा हूं, पहले बोलो कि समथिंग बाय भी, तो क्या बाय भी आया? है ये भी म्यू1, राइट आंसर, म्यू1 बाय भी माइनस क्या बाय यू आना चाहिए? म्यू2 बाय यू आया। तो राइट साइड में टेक्निक ये है, राइट साइड में ये ऊपर में म्यू1 माइनस म्यू2 दिख रहा है, राइट साइड में वही होगा, म्यू1 माइनस म्यू2, राइट साइड में वही होगा जो लेफ्ट साइड में सीक्वेंस आया। लेफ्ट साइड में क्या आया? म्यू1 बाय भी माइनस म्यू2 बाय यू, राइट साइड में वही आएगा, म्यू1 माइनस म्यू2, ये सीक्वेंस बाय आर, सेम सीक्वेंस बाय आर। सो ये जो फॉर्मूला बना, ये हम लोगों का लास्ट लाइन खत्म हो गया। दिस इज द एंड, यू गेट 4 मार्क्स फॉर दिस। जब 11 में ना काइनेटिक एनर्जी चेंज इक्वल्स टू वर्क डन, वर्क पर एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम सीख रहे थे, लग रहा था बाप रे 11 में इतना कुछ है क्लास 10 से, अब क्या बोलोगे फिर? देख रहे हो कितना लंबा थ्योरी है। बट बिलीव मी, इफ यू जस्ट प्रैक्टिस इट वंस, एक बार, बहुत कुछ सीखना पड़ा नया, दैट्स व्हाई, अदरवाइज है क्या ये पिक्चर? दिस इज द राइटिंग थिंग, यू डू मच बेटर, ग्रेटर थिंग्स, लॉन्गर थिंग्स इन मैथमेटिक्स। कुछ नहीं है, जस्ट पुटिंग सम लॉजिक्स। क्या लॉजिक है? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बिकॉज द सेकंड पार्ट यू नीड टू डू दिस। सेकंड पार्ट नहीं, और नहीं करेंगे, क्लास खत्म होने जा रहा है, बट यू नीड टू डू दिस टू हेल्प यू, कि ताकि व्हेन यू ट्राई एट होम ये बन जाए, यू कैन डू दिस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सी, स्नेल्स लॉ, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, sin theta becomes equal to only theta, sin I becomes I, sin R becomes R. Third, now I and R need to be replaced by other values of angles. कितने angles था? Total angles कितने थे? 5.
आई एंड आर ये दोनों, और बाकी तीन अल्फा बीटा गामा। अल्फा ऑब्जेक्ट का साथ, बीटा इमेज का साथ, गामा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। हो गया पांचवा एंगल। कल आई को रिप्लेस करो दो एंगल से, आर को रिप्लेस करो दो एंगल से। भाई साहब कौन सा एंगल, हाउ कैन आई नो दैट? उसके लिए एक हाई फाई थ्योरी बोला था मैथ्स में, क्या? एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर्स। दैट मींस आई को समझो कि कहां पे ये है, व्हिच ट्रायंगल दैट इट इज अपर्ट एज ईदर इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो देखे भाई ये इंटीरियर एंगल बन रहा है, आई प्लस अल्फा बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, इसका साथ गामा। तो गामा इक्वल्स टू आई प्लस अल्फा। सो आई इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा। बैठा दिया यहां पे, ओ कहां गया, सॉरी, बैठा दिया यहां पे। देखो ये जो किए थे यहां पे गामा माइनस अल्फा, बैठा दिए यहां पे, ये देखो गामा माइनस अल्फा। सिमिलरली आर को गामा प्लस बीटा। एंड देन मैं बोला था इंडिविजुअल टैन बना दो, टैन। धूप में जाने की जरूरत नहीं टैन करने के लिए, बाकी क्या करेंगे, सामने टैन लिखेंगे। दैट वाज द सिंपल प्रोसेस, बिकॉज लॉजिक ये था, यहां पे दिया हुआ है लॉजिक। देन वी केम टू द वैल्यूज ऑफ टैन। एवरीथिंग हैज, एवरी एक्सप्रेशन हैज ए एन परपेंडिकुलर सेम, कैंसिल हो गया, 1 by 1 हो गया। एंड देन नीचे सी एन ओ एन सी एन आई एन। एंड लास्ट, क्योंकि इसका अपर्चर स्मॉल है, दैट्स वाई पी पॉइंट एन का बदले में बैठा दिए एवरीवेयर। एन का बदले में पी लिख दिए एवरीवेयर, एन का बदले में पी लिख दिए, बिकॉज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एन इज द सेम मेजर्ड फ्रॉम पी। तो लाभ क्या है, पोल से डिस्टेंस को ही तो वी डिफाइन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ये 3 कैरेक्टर्स है। तो उसमें से हम लोग क्या किए, जहां जहां पे देखे ओ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू बैठा दिए बट नेगेटिव। जहां जहां पे आई लिखा हुआ है इमेज डिस्टेंस, भी बैठा दिए बट पॉजिटिव। और जहां जहां पे ये लिखा हुआ था सीपी सेंटर ऑफ कर्वेचर, माने रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा आर, तो वो बैठा के ये लाइन आया था। इसका नेक्स्ट लाइन ये है। एंड देन फाइनली वी गेट दिस थिंग। असली टेक्निक कभी बताए नहीं, बिकॉज ऐसा ही ये भी हो सकता था, सिर्फ ये पिक्चर्स ड्रॉ कर लो बस छुट्टी। क्या करना नहीं है, नहीं करना, यू हैव टू डू दिस एट होम, लेकिन फाइंड सम स्पेयर टाइम एंड प्लीज प्रैक्टिस दिस, टेक 15 मिनट्स फॉर दैट। ठीक होगा, देखना मैं टेक्निक समझा दे रहा हूं। आप देखो अब और नहीं बोलेंगे प्रूफ करने के लिए, बट लुक एट दिस। इफ द सेम पिक्चर वाज लाइक दिस, this was the principal axis, this was pole middle point, but but से पहले बोल रहा हूं कि क्या ये डेंसर मीडियम था μ2, ये कौन था, रेयर मीडियम था μ1। वो कहां पे बोले थे, शुरू में ही बोल देना है μ2 ग्रेटर देन μ1, शुरू में ही ये बोल दिया, ठीक है। देन अब ना ऑब्जेक्ट को ना इधर लेंगे, ऑब्जेक्ट दैट मीन्स ओ पॉइंट ना अब इधर होगा, तो एक रे जो होगा ऐसे आ जाएगी, ऐसे सीधा। क्यों, पोल्स अगर पास कर रहा है तो यहां पे कहीं ना कहीं तो होगा सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे जैसे पिछला बार हुआ था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगा वो तो सीधा निकल जाएगा बिना डेविएशन का। और दूसरा मैं बोला था कि यहां पे ऑब्लिक इल्यूमिनेशन। अब देखो प्रॉब्लम यहां पे ये हो सकता है, तुम लोग ड्रॉ मत करो, सिर्फ देखो इसको, समझो पहले, सिर्फ देखो, ड्रॉ नहीं करना, बस जस्ट थोड़ा सा देख लो, 5 मिनट बचा है क्या। If a incidence on this, we need to draw a tangent. No, we don't need to draw a tangent. Why? मैं तो बोला था डायरेक्ट नॉर्मल ड्रॉ कर लेना, मोटा मोटी जो तुम्हें लगे कि स्ट्रेट हो रहा है ऐसे। ये हो गया नॉर्मल, इसका साथ मैंने मोटा मोटी टेंजेंट का साथ परपेंडिकुलर दिख तो रहा है, तो बिना टेंजेंट ड्रॉ किए इसको ड्रॉ कर लेना। रफ एस्टिमेशन दैट विल डू। Then where this normal hits is center of curvature. If this is the center of curvature, अब तो ये रे का क्या हो जाएगा, ये जा रहा था तो लंदन बट जाएगा तो टोक्यो ना। क्यों, बिकॉज इट हैज टू रिफ्रैक्ट इनटू द डेंसर मीडियम, तो क्या करेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा ऐसे नीचे का तरफ। एक रे ये आके यहां आया, दूसरा रे ये आके यहां आया, तो यहां पे फिर से रियल इमेज हुआ, तो इमेज को क्या बोलेंगे, आई।
तो फिर यहाँ पे ए पॉइंट में अगर गिरा था, ए से नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एन, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। और वही एंगल्स, कौन सा, वही एंगल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल का साथ आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल का साथ, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल का साथ ये आर, आई आर, एंड देन और 3 एंगल्स, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा। देख रहे हो कैसे इजी हो रहा है, देख रहे हो, मैं बोला था ना, लर्न अ सिंगल थिंग बट अप्लाई एवरीवेयर, तब जाके मजा आएगा। अल्फा, ऑब्जेक्ट का एंगल बीटा, सी गामा, टोटल 5 एंगल बन गया। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप स्नेल्स लॉ, देन सेकंड स्टेप, एंगल को छोटा है तो साइन आई विल बिकम आई, साइन आर विल बिकम आर, हो गया। एंड देन वही फाइंड करेंगे इंटीरियर एक्सटीरियर, एंड देन वही इंडिविजुअल एंगल्स विल बी रिटन टैन। धूप में जाएंगे, नहीं जाएंगे, मैंने टैन करने के लिए ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसका बाद क्या, बस टैन का वैल्यू बैठाएंगे और हर एक का ऊपर कौन आएगा, ऊपर माने न्यूमरेटर में ए एन, जस्ट लाइक बिफोर, बोथ साइड से ए एन कैंसल। एंड सेकेंड थिंग, जरूर डिक्लेयर कर देना कि दिस हैज अ स्मॉल एपर्चर सो दैट व्हाट कैन बी नेग्लेक्टेड, दिस एनपी डिस्टेंस, बस बन जाएगी फिर से। लेकिन इस बार ना ये पिक्चर में मैं क्यों ड्रॉ किया वो सब, तो आई रिपीटेड दोज थिंग्स दैट विल हेल्प यू डेफिनेटली, बट नॉट फॉर मेनली फॉर दोज, देन मेनली फॉर दिस थिंग। और वो रहा ये टैंग टैना, क्या होगा, ये ऐसा होगा, समथिंग बाय वी, समथिंग बाय यू, समथिंग माइनस समथिंग जो आएगा ना इसका ऊपर में, वही इसका भी ऊपर में आएगा, समथिंग माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय आर। आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस। Sir, U2 by V minus U1 by Q is equal to U2 minus U1 by R. हाँ, mu2, mu2. So the idea is ऑब्जेक्ट जो मीडियम में है, ऑब्जेक्ट इज इन व्हाट मीडियम, mu1. So object अगर mu1 में है, this is the first thing that you need to see or look at. First step क्या है, भूलना मत इसको। First step क्या है, look at object, not image, look at object. Object placed in which medium, mu1. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है, ये सेकेंड पॉइंट, दैट इज सेकेंड स्टेप। अरे शुरू में स्टेप लगेगा, बाद में फ्लैट लगेगा, मतलब यू नो दिस, ऐसा लगेगा, हाउ, बट शुरू ऐसे ही करो। ऑब्जेक्ट कहां पे है, mu1 में। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन होता है, u, u का ऊपर कौन होगा, mu1, बात खत्म हो गई। व्हाई, बिकॉज द अदर थिंग दैट इज द इमेज, वो तो mu2 में है। सो इमेज डिस्टेंस होता है v, थर्ड स्टेप। इमेज डिस्टेंस भी, तो उसका ऊपर क्या लिखेंगे, mu2 बन गया। लेफ्ट साइड में क्या फॉर्मेट आ गया, mu2 माइनस mu1। राइट साइड में क्या फॉर्मेट आ जाएगी, ऊपर में न्यूमरेटर में mu2 माइनस mu1, बात खत्म। तो क्या ये आइडिया पिछला बार भी हो सकता था डायरेक्ट, यस। अगर वो थ्योरी नहीं आया, सिर्फ साम आया, तो वी कैन ऑल्सो अप्लाई दैट। देखोगे पिक्चर में चलते हैं। ऑब्जेक्ट कहां है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। वेयर इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इन mu2 मीडियम। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माने eu का ऊपर होगा mu2, श्योर। बाकी mu1 में कौन बना, इमेज। तो जो समथिंग बाय v वाला पार्ट है, वो v का ऊपर कौन होना चाहिए, mu1 फॉर श्योर। देखते हैं तो, लेट अस सी दैट। अरे यस, आ गया, यही आया, u का ऊपर mu2, ऑब्जेक्ट mu2, v का ऊपर mu1, image. Oh, this was the next case, no? Sorry. This case, image mu1, image mu1,
और राइट साइड में सेम सीक्वेंस ऑफ μ1 μ2, पहले μ1 देन μ2, सो μ1 माइनस μ2। यहां पे पहले μ2 फिर μ1, सो μ2 माइनस μ1 ऊपर में। ओके, बट इट इज योर टास्क, ट्राई टू प्रूव दिस रिलेशन फ्रॉम दिस बाय द सेम मेथड आई हैव explained before you. Same method, try to do this, that is your home task, and today's class is over. ठीक है, तो आज का क्लास खत्म हुआ। बाय एवरीवन, बाय। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय।